So hello students, welcome to EduTap and welcome to this video. So in today's video, very quickly, we are going to talk about the eligibility. And yes, I know some of you already know about the eligibility. You have seen some past video, but this video is specially for the fresher who don't know about the eligibility or they might have some confusion. So in today's video, we are going to discuss age, कितनी चाहिए होती है फॉर नाबार्ड ग्रेडेड देन व्हाट इज द सीन ऑफ रिलैक्सेशन इन पर्टिकुलर कैटेगरीज देन व्हाट इज द qualification required for NABARD grade A, is the experience required or not, or if required what are the conditions. These kind of things we will discuss in this video. So let's start our video and let's start with the age. So age, if I talk about, the minimum age should be 21 years, the maximum age should be 30 years. If you lie between the category where your age is 22, 23, maybe up to 29, 28, 29, you don't need to worry, I think, about this particular eligibility criteria. But yes, if I talk about, ma'am, people who are worried, they might be just turning into 21 or they might just be crossing 30. So this is the group who is most worried about this particular criteria. So I will tell you ki in NABARD ki notification, a clear cutoff date will be mentioned itself. And to further help you, NABARD will also mention not earlier than this date, not later than this date. So this NABARD, you can see this is from the notification of year 2022, and this year's also NABARD give. If there is any change related to the cutoff date, related to the age, we will also make the video at that time. Ki, okay, this is the change that had been declared by NABARD. All right. Then we have discussed the age. Let's quickly discuss the relaxation. Who will get it? So if you belong to SC/ST category, then you will get the relaxation of 5 years. Now the effective age that you can appear in this examination will increase by 5 and it will be 35 years. Similarly, if I talk about the OBC, the 3-year relaxation will be given and the effective age will be 33 years. If I talk about PWBD, this will become 40 years. Right, so this will be the scenario of relaxation. Now again, these you will have to see from the mentioned cutoff date, जो कि notification में already will be given. Right, so this is something you should know. Now coming to the, we have discussed about the age, we have discussed about the relaxation. Let's quickly also discuss about the qualification. So qualification में देखो, simple funda is this: if you belong to unreserved category, or if you belong to ex-serviceman category, or if you belong to even OBC EWS category, in that case you need to have 60% in your graduation. Understand very carefully, graduation we are talking about, okay? Then if you are from the SC, ST, PWBD category, in that case you need to have 55%. We are talking about graduation, and here UR के लिए the percentage is 60, and for the reserve categories, mentioned reserve categories, that will be 55. Now let's say you belong to UR or you belong to reserve category where you don't have this cutoff, but you have your masters, that means you have your post graduation. If you have post graduation, now graduation के marks doesn't matter. Post graduation में you need to have, in the general category you need to have 55%, and in the reserve category same criteria it will be for SC, ST, PWBD, 50% marks need to be there. Right, let's say you have also done your PhD, or you have done your CA, or you have done your CS, or I mean you have PhD or such. After post graduation you have further higher degrees. In that case your marks doesn't matter. ये वाले marks भी doesn't matter. You just need to have complete PhD, complete CA, complete CS. Right, मैम, बट फ्रॉम व्हाट डेट आई नीड टू बी कंप्लीट. लेट्स से कि मेरा फाइनल एग्जाम हो गया बट मार्क्स नहीं आए, बट आई विल स्कोर गुड, आई नो. और इट माइट बी लाइक कि मैम पेपर तो सारे हो गए हैं, पता चल गया है मार्क्स कितने आएंगे, बट ऑफिशियली रिलीज नहीं हो रखे. इन दैट केस यू विल नॉट बी एलिजिबल, बिकॉज जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन इफ दे डोंट हैव देयर रिजल्ट बाय द मेंशन डेट. जैसे अगेन नाबार्ड ने डेट मेंशन की थी कि अगर आप फाइनल के ईयर के स्टूडेंट हैं देन आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए.
ठीक है, इसका मतलब आपका फाइनल टर्म या फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन के रिजल्ट आ जाना चाहिए बिफोर द मेंशन डेट या फिर ऑन मेंशन डेट। अगर आपका रिजल्ट नोटिफिकेशन के एक दिन बाद भी आता है, सो यू वुड नॉट हैव बीन एलिजिबल। या नोटिफिकेशन नहीं, यहाँ जो मेंशन डेट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस डेट तक आपके पास आपका रिजल्ट होना चाहिए, या तो उसी दिन हो जाए या उससे पहले आपका रिजल्ट कंप्लीट आपके पास होना चाहिए, राइट? तब अगर इसके बाद आता है तो यू विल नॉट बी एलिजिबल, राइट? देन डिस्टेंस एजुकेशन क्या वैलिड होती है? देखो, आई हैव शोन यू द नोटिफिकेशन का कटआउट, वहां पे कहीं पे भी डिस्टेंस ऐसा नहीं लिखा था कि, देखो यहाँ पे जैसे क्लियरली लिखा है फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर आफ्टर आर नॉट एलिजिबल। क्या ऐसा कहीं डिस्टेंस एजुकेशन के लिए लिखा है? नो। सो दैट मीन्स दे आर एलिजिबल। पोस्ट ग्रेजुएशन नेसेसरी? नो, इट इज नॉट मैंडेटरी। इट अगर आपके पास है तो आपके उसके मार्क्स काउंट होंगे, दैट इज द कंडीशन। क्या मार्क्स जो ऑब्टेन होते हैं, आर दे ईच सेमेस्टर और एग्रीगेट? दीज विल बी एग्रीगेटेड। दैट मीन्स आपके कंप्लीट मार्क्स का परसेंटेज जो हम देख रहे हैं कि 55 होने चाहिए या 60 होने चाहिए या 50 होने चाहिए, दैट विल बी एग्रीगेटेड मार्क्स ऑफ ऑल द सेमेस्टर्स दैट यू हैव, राइट? सो आई होप अभी आपको थोड़ी सी क्लैरिटी इससे रिलेटेड मिल गई है। अगर कोई, मुझे पता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं पे होते हैं, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द जर्नलिस्ट पोस्ट, डू लेट मी नो। ये सिर्फ जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए, स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन अलग मांगी होती है। अगर देयर इज एनी चेंज रिलेटेड टू द एलिजिबिलिटी दैट नाबार्ड डिक्लेयर्स, वी विल ऑफ कोर्स टेल यू कि ये चेंजेस हुए हैं एट दैट टाइम। अभी के लिए, अभी तक ये है कि इफ यू लाई इन दिस कैटेगरी, डू प्रिपेयर फॉर नाबार्ड। देन कमिंग टू नाबार्ड की जो एलिजिबिलिटी है, उसमें क्या एक्सपीरियंस चाहिए? सो इफ आई हैव टू सिंपली से कि एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा। अब इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन आता है, दिस इज फॉर ग्रेड ए, ऑफ कोर्स ग्रेड बी के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ग्रेड बी के लिए यू एटलीस्ट नीड 3 years ऑफ एक्सपीरियंस प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपकी होनी चाहिए, राइट? तो ये कंडीशन है ग्रेड बी के लिए। ग्रेड ए के लिए ऐसा कोई एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपका गैप ईयर है तो क्या मैं नाबार्ड कर सकता हूँ? यस, डेफिनेटली कर सकते हो। मैम, व्हाट अबाउट द इंटरव्यू? इफ दे आस्क मी, दे विल थिंक कि आई वॉज टेकिंग गैप, आई एम नॉट वर्दी। इट इज नॉट लाइक दैट। यू विल, अगर क्वेश्चन पूछते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट लाइक कि दे विल सी की ओके गैप, व्हाई द गैप ईयर इज दैट। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। But let's say कि they ask you the question on gap year, you will have to justify कि why or what you are doing in that time. You can simply say कि I was preparing for the examination. So be very honest and just justify this. इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। But अब आ जाता है इससे बड़ा क्वेश्चन, क्या नाबार्ड देना चाहिए मुझे? चलो, everybody like in this time I think everybody is able to get 60%, right? या फिर most तो मिल जाते हैं मार्क्स, एंड ऑल्सो एज भी मेरी है, तो शुड आई गिव दिस एग्जामिनेशन? आई वुड से नो। इसके लिए देखो, दिस एग्जाम इज फॉर सम पीपल। हु आर दोज पीपल? सबसे पहले अगर आपके पास पैशन है, पैशन मीन्स यू नो कि नाबार्ड में कितना अच्छा सैलरी है, यू नो कि नाबार्ड में फील्ड जॉब नहीं है, नाबार्ड में पोस्टिंग जो होती है मेट्रो सिटीज में होती है एक्सेप्ट वन पोस्टिंग इन रूरल एरिया। देन नाबार्ड में प्रमोशन बहुत फास्ट है, नाबार्ड में अच्छे पर्क्स मिलते हैं। सो इफ यू आर आफ्टर हियरिंग दिस यू फील लाइक कि यस नाबार्ड इज द जॉब फॉर मी, देन गो फॉर इट। कोई चीज मैटर नहीं करती है, ये मैटर नहीं करता आर यू फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड और नॉट, हैव यू डन यूपीएससी और नॉट, कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर इज योर पैशन। अगर आप पैशनेट हैं कि येस नाबार्ड इज फॉर मी, आई विल डू एनीथिंग फॉर नाबार्ड, देन गो फॉर नाबार्ड, नथिंग मैटर्स। आप हिंदी मीडियम से हैं, आपने बीए कर रखी है, आपने बीएससी कर रखी है जिसका कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, यू हैव डन योर बीएससी फ्रॉम फिजिक्स, कोई रिलेशन नहीं है बायोलॉजी से, स्टिल अगर पैशन है तो जाओ। देन कमिंग फॉर द second type of people, that is opportunity. NABARD can also be presented as the opportunity for the people from UPSC background, for the people who have given RBR, for the people who have appeared for the EPFO APFC examination. Simple reason being, देखो कि even the state जिन्होंने स्टेट के पीसीएस के एग्जाम दे रखे हैं, ऑल्सो द पीपल जिन्होंने एएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सिंपल रीजन बीइंग कि यहाँ आपका कुछ ना कुछ सिलेबस जो है दैट इज ऑलरेडी बीइंग कवर्ड इन नाबार्ड, ठीक है? तो इसलिए यू शुड गो फॉर नाबार्ड। अदरवाइज ये भी नहीं है तो आपका कुछ ऐसा पोर्शन होगा दैट विल ऑलवेज, जैसे इफ आई टॉक अबाउट द एएफओ, एएफओ में यू आर इन द मेंस यू आर गिविंग द एग्रीकल्चर, राइट? उसमें आपका एआरडी ऑलरेडी इज बीइंग डन, सो व्हाट यू विल हैव टू डू, ईएसआई थोड़ा सा प्रिपेयर करना है, वो भी करंट कॉन्टेक्स्ट से आप इस एग्जाम के लिए, एंड क्यूआरई तो यू ऑल्सो गिव, तो आपका एग्जाम हो जाएगा। देन इफ आई टॉक अबाउट द आरबीआई, आपको अगेन एआरडी कंपेयर
कंप्लीट करना है अच्छे से। करंट अफेयर आपको थोड़ा सा ARD एग्री वाला पॉइंट लाना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर गुड टू गो। तो अगर अपॉर्चुनिटी है, अगर पैशन है तभी जाओ, अदरवाइज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जामिनेशन, दैट इज योर प्राइमरी गोल कि आपको कैट ही करना है, अच्छा कॉलेज चाहिए, देन नो नीड टू प्रिपेयर फॉर नाबार्ड। अपना जो एग्जाम हाथ में है उस पर फोकस करो, ठीक है। इफ यू आर गिविंग सम एग्जामिनेशन वेयर नथिंग, लेट्स से यू आर गिविंग द कैंपस प्लेसमेंट में आपको बैठना है, या फिर आपने गूगल के लिए यू आर प्रिपेयरिंग, देयर इज नो नीड टू सिट फॉर नाबार्ड। फिर कोई पेपर देके भाई यू आर प्रिपेयरिंग हाफ टाइम, यू आर प्रिपेयरिंग दिस, हाफ टाइम यू आर प्रिपेयरिंग दैट, नथिंग इज कॉमन, सो देन डोंट डू इट। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि येस सम सिलेबस इज देयर, देन गो फॉर नाबार्ड, और आपके पास पैशन है, ये ऑफ कोर्स ज़्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ये ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी है, तो दिस मेक्स अ गुड चांसेस ऑल्सो, राइट। सो आई होप कि यहाँ से आपको क्लैरिटी आ गई है एलिजिबिलिटी के लिए, और ऑल्सो क्लैरिटी आ गई है कि किसको एग्जाम एक्चुअली देना चाहिए। सो दैट विल बी इट फॉर द वीडियो। आई प्रॉमिस यू काफ़ी छोटी वीडियो होने वाली है कंप्लीट क्लैरिटी के साथ। सो आई होप वी आर एबल टू अचीव दिस। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। अगर कोई डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, ऑलराइट। सो डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई फर्दर डाउट है, एलिजिबिलिटी तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एंड ऑफ कोर्स यू विल नॉट गेट द PDF, तो अगर आपको एलिजिबिलिटी से क्वेश्चन हुआ तो यू कैन डाउनलोड दिस गाइड बुक। In this you will get solved PYQ, in this you will get decoded syllabus, all the clarity on eligibility, you will also get a working strategy and definite sources to crack NABARD, और ये आपको मिलेगी absolutely free, just check out the link below। then अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आप कोई कोर्स के लिए देख रहे हैं कि भाई सोर्सेज मिल जाए इजीली प्रिपेयर करने के लिए, तो वी हैव 2 ऑनलाइन कोर्सेज, वी हैव गोल्ड पैक एंड वी हैव सिल्वर पैक। इन गोल्ड you will get complete guidance related to phase 1, phase 2 and interview। इफ आई टॉक अबाउट सिल्वर पैक, लेट्स से कि आपने QRE पहले से कर रखा है, इन दैट केस सिल्वर पैक आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज हियर यू विल गेट कंप्लीट गाइडेंस रिलेटेड टू ARD, ESI एंड GA दैट यू विल गेट इन फेज 1। फेज 2 के लिए आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा बोथ इन पेपर 1, पेपर 2 एंड इंटरव्यू में भी यू विल गेट कंप्लीट गाइडेंस। अब इनमें आपको अट्रैक्टिव ऑफर चाहिए तो चेक आउट द लिंक बिलो। इस टाइम पे ऑफर जो चल रहा होगा, यू विल बी एबल टू अवेल दैट ऑफर वेरी इजीली। सो थैंक यू so much. If you're new here, do remember to subscribe to our YouTube channel. If you want the PDF of the content that we provide, then you can join our Telegram channel as well. अभी भी कोई query है, अगर session भी अच्छा लगा तो do let me know that in the comment section. That will be it. Thank you so much and take care.